आप मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि हमारे राज्य के बीजेपी प्रेसिडेंट माननीय श्री राजीव भट्टाचार्य जी को महोदय आप माइक पे आए और अपने भाषण के द्वारा लोगों के मनोबल को उजागर और बढ़ाने का कार्य करें। धन्यवाद। आज के আমরা সবাই জানি যে আগামী 19 এপ্রিল আমাদের এই পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের লোকসভা নির্বাচন সংগঠিত হবে। আর এই লোকসভা নির্বাচনে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি, আইপিএফটি এবং ত্রিপুরা মাতা সব মিলিতভাবে আমরা একজোট হয়ে লড়াই করছি। আমাদের এই কেন্দ্রের প্রার্থী রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আদরণীয় শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়ের সমর্থনে আজকের এই সভা আমরা সংগঠিত করছি। মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়, উপস্থিত রয়েছেন আমাদের প্রার্থী রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়, ত্রিপুরা মাতার সুপ্রিমো মাননীয় শ্রী মহারাজা প্রদ্যোৎ কিশোর মানিক্যজি, উপস্থিত রয়েছেন আইপিএফটি দলের সভাপতি প্রেম কুমার রিয়াং এবং এখানে মঞ্চে উপস্থিত বিজেপি, আইপিএফটি এবং ত্রিপুরা মাতা দলের সম্মানিত নেতৃত্ব এবং দূর দূরান্ত থেকে আগত আমার সমস্ত যারা আজকের এই সভাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য উপস্থিত হয়েছেন, আমি প্রত্যেককে অনেক অনেক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাচ্ছি। যতন কুলুঙ্কার। ধন্যবাদ। বন্ধুগণ, আমরা জানি आज इस मैदान से सीपीएम और कांग्रेस को सबक मिल गया है। मैं मानता हूं कल से सीपीएम और कांग्रेस घर से नहीं निकलेंगे। ये आज जो जमायत है वो प्रमाणित कर दिया है। 225 साल में त्रिपुरा में सीपीएम का राज था और 25 साल में मैं हम लोगों से पूछता हूं ये सीपीएम 25 साल में ये जनजातियों के लिए, ये त्रिपुरा की आम जनता के लिए क्या किया है, एक मन से प्रश्न पूछना चाहिए। 25 साल में कुछ नहीं किया है। इनका गिनती ये बोलते थे जब विधानसभा चुनाव आते थे तब बोलते थे 20 सीट रिजर्व है और यह सीपीएम को मिलने वाला है। अब ये ऐसा परिस्थिति है क्या? अभी ऐसा परिस्थिति है क्या? ये त्रिपुरा की जनता जाग गया है और 2018 से त्रिपुरा में भाजपा आईपीएफटी सरकार में था और आज हम लोगों का दुगना सत्य हो गया है। त्रिपुरा माता भी भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट में शामिल हो गए। ये प्रमाणित करता है कि त्रिपुरा में एक साथ होके हम लोग चुनाव लड़ेंगे और त्रिपुरा की विकास के लिए हम लोग काम करेंगे। और हमारा जो नारा है एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। पश्चिम त्रिपुरा में, पूर्व त्रिपुरा में हम लोग 26 का चुनाव है। ওখানে আমাদের প্রার্থী হয়েছেন রাজ পরিবারের কন্যা আমাদের মহারানী কৃতি দেবী দেববর্মন মহোদয়কে আমরা প্রার্থী করেছি। গত 28 তারিখে আমরা যখন আমাদের নমিনেশন দিতে যাচ্ছিলাম পূর্ব ত্রিপুরা আসনে, সেই গাড়িতে আমি ছিলাম, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, আমাদের বুবাকা ছিলেন और हमारे महाराज जी बोलছিলেন ये राजीव जी हम लोग इस अलायंस को आगे लेके जाएंगे और इस अलायंस में काम करेंगे। तो 28 का चुनाव अभी डिक्लेयर कर दीजिए और त्रिपुरा में 60 सीट है
आईपीएफटी, बीजेपी, तीव्रता मिलके सातों में साथ और हम लोग चुनाव में जीत आएंगे, ये वादा, ये बात महाराज जी ने बोल रहा था। मैं बोलता हूं 25 বছর এই ত্রিপুরা রাজ্যে কমিউনিস্টের শাসন ছিল, তাদের স্লোগান ছিল ইনকলাব জিন্দাবাদ, আমরা খাবো তোমরা বাদ। সেটাই প্রমাণিত হয়েছে। এই রাজ্যের গরিব মানুষ, এই রাজ্যের কৃষক, শ্রমিক, এই রাজ্যের জনজাতি বিকাশের জন্য কমিউনিস্টরা কোনো কাজ করেনি। তারা তাদেরকে ভোট ব্যাংকের হাতিয়ার করে এই রাজ্যের জনজাতিদের কিভাবে লুণ্ঠন করা যায় তার প্রয়াস কমিউনিস্টরা করেছে। ভারতীয় জনতা পার্টি, আইপিএফটি এবং আমাদের এই এখন ডাবল ইঞ্জিনের সরকার এই রাজ্যের জনজাতিদের যাতে বিকাশ হয়, সবচেয়ে বড় জিনিস হলো শিক্ষা ব্যবস্থা। আমরা ধন্যবাদ জানাই আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রীকে। এই ত্রিপুরা রাজ্যের মতো জায়গায়, পার্বত্য রাজ্য ত্রিপুরা, এই ত্রিপুরার মতো জায়গায় জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের একলব্য বিদ্যালয়, প্রায় 27টি একলব্য বিদ্যালয় প্রতিস্থাপনের জন্য আমাদের প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে এই ত্রিপুরা রাজ্যকে উপহার দিয়েছে। জনজাতি এলাকায় শিক্ষার মানকে আরো উজ্জ্বল করার জন্য সেখানে আমাদের বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে জনজাতি অংশের মানুষ যাতে ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনা করতে পারে, গরিব ছেলেমেয়েরা যাতে পড়াশোনা করতে পারে ইংরেজি মাধ্যমে, তার প্রয়াস আমাদের সরকার করেছে। আমাদের ডাবল ইঞ্জিনের সরকার করেছে। বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে বিদ্যালয় প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা আমাদের এই ডাবল ইঞ্জিনের সরকার করেছে বন্ধু। আর আমরা দেখেছি 25 বছর ওই সিপিএম এর নেতারা বলতো যে ইংরেজি মাধ্যমে পড়ানো যাবে না, ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস 8 পর্যন্ত ইংরেজি পড়ানো বন্ধ, নিষেধ করা হয়েছিল। আর ওই সিপিএম এর নেতা মন্ত্রী যারা হয়েছিল তাদের ছেলে মেয়েদের বড় বড় আগরতলাতে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়াশোনার ব্যবস্থা করত, কিন্তু গ্রামে জনজাতি এলাকায়, পাহাড়ি এলাকায় সমস্ত সরকারি স্কুলে ক্লাস 8 পর্যন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা, সেখানে ইংরেজি শিক্ষা যাবে না, ইংরেজি ব্যবস্থা, ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা সেখানে বন্ধ করা হয়েছিল। আমাদের সরকার, আমাদের এই ডাবল ইঞ্জিনের সরকারের মূল উদ্দেশ্য হলো প্রকৃত পক্ষে জনজাতিদের উন্নয়ন করা। তাই আমাদের সরকার প্রতিষ্ঠার পর আমরা 12টি আমাদের ইন্সপিরেশন ব্লক, যেখানে জনজাতি অংশের মানুষের বসবাস বেশি, সেখানে জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য সেখানে রেগার মেন্ডেজ বৃদ্ধি করা থেকে শুরু করে, পিডিএফ ফান্ড থেকে শুরু করে বিভিন্নভাবে তাদেরকে সহায়তার ব্যবস্থা আমাদের ডাবল ইঞ্জিনের সরকার করেছে বন্ধুগণ। তাই আমরা জানি, আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের যে মূল মন্ত্র, যে আমাদের এই রাজ্যের এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করার লক্ষ্যে আমাদের মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। তাই আজকে আইপিএফটি, বিজেপি এবং ত্রিপুরা মাতা সবাই মিলিত হয়ে আমরা সবাই একসাথে এই ত্রিপুরার উন্নয়ন চাই। সেই লক্ষ্যমাত্রাকে আজকে আমরা কাজে লাগাবো। তারা কিসের গ্যারান্টি দেবে? গ্যারান্টি যদি দিতে পারে আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি দিতে পারে। আজকে গ্যারান্টি যদি দিতে পারে আমাদের মঞ্চে যারা অতিথিরা বসে রয়েছেন, সম্মানিত অতিথিরা যারা বসে রয়েছেন, তারা এই রাজ্যের জনজাতিদের বিকাশের জন্য উন্নত গ্যারান্টি দিতে পারেন। তাই বন্ধুগণ, কাজেই বন্ধুগণ, আগামী 19শে এপ্রিল আমাদের সবার মনে রাখতে হবে যে এই কংগ্রেস এবং সিপিএম এই ত্রিপুরা রাজ্যকে যেভাবে লুণ্ঠন করেছে তাদেরকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার সময় আছে। আগামী 19শে এপ্রিল পদ্ম ফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে আমরা সবাই মিলে আমরা আমাদের বিপ্লবটাকে মোদীজির হাতকে শক্তিশালী করার জন্য আমরা উপহার স্বরূপ আমরা পাঠাবো, সেই সংকল্প আমাদের নিতে হবে। আর সব খালসা মিলে আজকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে ওই সিপিএম কংগ্রেসদেরকে জামানত বাজেয়াপ্ত করে আমরা মোদীজির হাতকে শক্তিশালী করব, সেই সংকল্প নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে। আমি আমার কথা না বাড়িয়ে সকলকে আমি আবারও আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে আমার কথা বলা শেষ করছি। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जतन हम भाई। धन्यवाद माननीय महोदय को, ये आपके बातों से हमारे लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ ऊर्जा मिली है, तो आने वाले चुनाव में हमें निश्चित है कि हमें जीत दर्ज करेंगे। इसलिए मैं अभी ऐसे शख्स को बुलाना चाहूंगा जो हमारे बीच मौजूद है, और उनको बुलाने से पहले मैं हमारे बुबागरा और
कि दिल में दया आंखों में करुणा और होठों पे है मुस्कान। दिल में दया आंखों में करुणा और होठों पे है मुस्कान। बड़ी तकलीफ से मिलते हैं इस जग में हर कोई ऐसा इंसान। तो मैं ऐसे इंसान को ही बुलाने जा रहा हूं, तो वो है हमारे आईपीएफ और बीजेपी तीव्रमथा के समर्थित प्रत्याशी, लोकसभा चुनाव के हमारे प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री हमारे विप्लव कुमार जी को मैं स्वागत करता हूं। और तालियों के गड़गड़ाहट के साथ हमारे विप्लव कुमार जी को स्वागत कीजिए। तो माननीय महोदय को मैं धन्यवाद देते हुए यही आमंत्रित करता हूं कि आप अपने भाषणों के द्वारा हमारे लोगों की मनोबल को और बढ़ाने का कार्य करें और आने वाले चुनाव में हम सब लोग एक भी बूथ ना सुने, हमारे विप्लव देव जी की समर्थन में हर बूथ को हम लोग डालें। धन्यवाद। अब हम जो फील्ड में बैठे हुए मेरे बहन भाई और मेरे त्रिपुरा का जो धरती का पुत्र है, बहनें हैं, और मैं भी जहां खड़ा हूं वहां भी दुख है, आपके बीच में भी दुख है। तो हम बराबरी में आए हैं ना। मुझे जानता है या कौन कौन जरा हाथ उठाओ, मुझे जानता है, जानता है, जानता है, जानता है, जानता है, मुझे जानता है। मानिक बाबू, मानिक सरकार को बोल रहा आके देखो, कुमलम विप्लव को जानता है, त्रिपुरा विप्लव को जानता है, त्रिपुरा बुआगरा को जानता है, त्रिपुरा मानिक शाह को जानता है, त्रिपुरा इस धरती को जानता है, क्योंकि वो धरती के पुत्र है, धरती के बेटी है। मेरे मित्रों, आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच जो ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें एक ऐतिहासिक दृष्टि है, ऐतिहासिक विषय है। उसमें क्या है, आज खुमलन के इस मैदान में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह भी है, हमारे महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक्य के नाती और महाराज किरीट विक्रम विभूदेवी का जो बेटा मेरा दोस्त बुआगरा भी बैठे हैं, और साथ ही साथ हमारे प्रदेश का अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य जी बैठे हैं, हमारे बीके रामखल जी जो कि त्रिपुरा माता का अध्यक्ष बैठे हुए हैं, प्रेम कुमार जी आईपीएफ के अध्यक्ष बैठे हुए हैं, हमारे बीच में जगदीश जी बैठे हैं, जगदीश वर्मा जी जो एडीसी का प्रेसिडेंट चेयरमैन है, हमारे पूर्णचंद्र जमातिया जिनका नाम ही पूर्ण है, वो सबको पूर्ण कर देता है, ऐसा सीएम है हमारे पास त्रिपुरा में। आओ मानिक सरकार और जो कांग्रेस के नेता, देखो आके हम कहां बैठे हैं, आपको मालूम ही नहीं है। आप काल बोल रहे थे कहीं त्रिपुरा में महाराज प्रद्युत किशोर मानिक्य ने बेईमानी किया है। अरे उस राज परिवार में बेईमानी का खून नहीं है, आपके खून में बेईमानी है, आपके खून में बेईमानी है। आपने 25 साल राज किया, इससे पहले 10 साल राज किया, तो जनजाति के साथ बेईमानी किया है। आपने जो बेईमानी किया है, इसलिए आप बेईमान को पहचानते हो। विप्लव देव जो त्रिपुरा को प्यार करता है, वो उसको जानता है, इसलिए हम बुआगरा को प्यार करते हैं। मेरे को उसी कारण से हम बुआगरा को और विभूदेवी को प्यार करते, क्योंकि मैं उनका बेटा नहीं हूँ, किंतु महारानी विभूदेवी मुझे बेटे जैसा सम्मान आदर करता है। इससे बड़ा भाग्य मेरे जीवन में क्या हो सकता है। मैं प्रार्थी हूँ, मैं यहाँ बीजेपी आईपीएफटी और त्रिपुरा का प्रार्थी हूँ। मैं नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूँ, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बनेगा तो त्रिपुरा का भला होगा। अरे महाराज का जो इशू है, जो त्रिपुरा के लिए मांग रहा था, अरे मानिक सरकार आपने नहीं दिया, आपने राहुल गांधी ने नहीं दिया, हमारे यशस्वी गृह मंत्री अमित भाई शाह जी ने महाराज प्रद्युत किशोर मानिक्य को बुला के त्रिपुरा को जनता को जनजाति का सम्मान दिया। सम्मान दिया गया मित्रों,
इसलिए मैं कहना चाहता हूं खुमलों से, ये जो काल आपने जो बैठ के बेईमानी का पाला जो पड़ा है, आपने बेईमानी किया है जनजाति के साथ। मैं बार बार बोल रहा हूं। उसके बाद और दूसरा बात बोलता है क्या, त्रिपुरा में बच्चा बेच के लोग खा रहे हैं। किसका बच्चा है भाई? किसके घर में पोता हुआ? किसके बेटी को आपने बेचा? किसी ने बच्चा बेचा है? यहाँ कोई है? कुमलों में कोई है बच्चा बेच के खाना खा रहे हैं? मेरे पूरे त्रिपुरा में है। आपके समय में लोग बच्चा बेच के जनजाति अपना चावल लाता था किंतु आज नरेंद्र भाई मोदी के समय 5 किलो करके चावल सबको फ्री में दिया जाता है। 5 किलो करके चावल फ्री में दिया जाता है। किस किस को 5-5 किलो चावल फ्री में मिलता है? जरा हाथ उठाओ तो मेरे दिखाओ। 5 किलो चावल फ्री में मिलता है। 5 किलो चावल पैसा नहीं लगता। मिलता है, मिलता है, मिलता है। जब कम्युनिस्ट का सरकार था, 25 साल की सरकार रही है। आज ये भी बोलता है बुआग्रा तो मोदी के साथ चला गया, तो इसलिए वो जो जन वना मुक्ति परिषद किया था वो लोग बुआग्रा के साथ नहीं जाएगा। वो लोग बुआग्रा का नहीं, मोदी के साथ जाएगा। त्रिपुरा के जनजाति, त्रिपुरा के जनजाति धरती पुत्र नरेंद्र भाई मोदी के साथ जाएगा, क्योंकि मोदी ने त्रिपुरा के साथ न्याय किया। मेरे मित्रों, मोदी ने यहाँ का 2018 में त्रिपुरा का जाति जनजाति को मुक्ति नहीं मिलता। मेरे मित्रों, हम लोग कांग्रेस सीपीएम करते करते हम लोग को बेच डालता है। देखो जो लोग कांग्रेस और सीपीएम कर करके लड़ाई किया है, मर्डर किया है, दंगा किया है, जनजातियों को घर को जला दिया है, आज कांग्रेस और सीपीएम एक साथ बैठ के मानिक सरकार बोलता है मैं तो हाथ में वोट करूंगा, हाथ चिन्ह में वोट करेगा। पहले बोलता था इस काला जो हाथ है, काले जो हाथ है, इसको तोड़ डालो। आज मानिक सरकार बोलता है उस काले हाथ में ही हमको वोट देना है। त्रिपुरा की जनजाति आपके साथ नहीं है, कभी भी जाने वाला नहीं है। जनजाति महाराजा वीरभद्र किशोर मानिक के साथ है, बुआग्रा के साथ है, मानिक शाह के साथ है, नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ है, और सर्वोपरि हमारे दिल के साथ है, हमारे दिल के साथ है। मेरे मित्रों, मैं दिल से जनजाति को प्यार करता हूँ। ना प्रेम कुमार जो बोल रहे थे विप्लव जी ने मुख्यमंत्री रहे तो ये किया, वो किया, ये किया। मैंने कहा मैं तो मुख्यमंत्री हूँ, मेरा काम है, ये मैंने किया है। और मुझे जो मिला है जनजाति का गुदक मिला है, मुझे जनजाति का ये निशा मिला है, मुझे निशा मिला है, मुझे प्यार मिला है। मैं प्यार का भूखा हूँ मानिक बाबू। हम प्यार के भूखे हैं क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं। हम इस धरती में जन्म लिया है। मैं इस धरती का कीमत जानता हूँ और मैं वादा के साथ आज कुमलों में बोलता हूँ, मुझे आप एमपी बना के जब भेजेंगे, मैं जब काम करूंगा, मैं जाति जनजाति त्रिपुरा के हित में काम करूंगा और त्रिपुरा को नंबर 1 प्रदेश बनाने के लिए, जनजाति को हर घर में रोजगार देने के लिए, जनजाति को बहनों को सबको आसमान में उड़ाने के लिए, जनजाति को भाई को ड्रग्स से निकल के रोजगार देने के लिए विप्लव देव और बुआग्रा मानिक शाह मिल के काम करेगा। और मेरा विश्वास है उसी दिशा में पूरा त्रिपुरा काम करेगा। और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात याद रखना, वोट कहाँ करना है? वोट इस बार कमल निशान में, पद्म फूल में करना है, तब मेरे पास जाएगा, नहीं तो दूसरे के पास चला जाएगा। मुझे वोट करवे, मुझे वोट करना है। कौन कौन करेगा? जब हाथ उठाओ, कौन कौन करेगा? मानिक बाबू देखिए, सब लोग पद्म फूल में नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगा। मैं सबको बहुत 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 धन्यवाद देते हुए मैं अपना विषय समाप्त करता हूँ। क्या नारा दो? एक नारा दो। मेरे प्यारे त्रिपुरा, मेरे प्यारे जनजाति भाई बहनों, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।
রত্না খোলঙ্খা, সবাইকে নমস্কার। আজকের এই কুমলুঙে যে বিশাল মাত্রার যে জনসভা, যে ধানসা র্যালি, এই র্যালিতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের পিপরা মাতার যিনি ফাউন্ডার, যিনি একটু আগে ওনার জ্বালাময়ী বক্তব্য এখানে রেখেছেন, মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা মহোদয়। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন যিনি ভারতীয় জনতা পার্টির পদ্মচিহ্নে এবার লোকসভার আসন্ন লোকসভার যিনি মনোনীত প্রার্থী, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যসভার সদস্য শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়। উপস্থিত আছেন ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির মাননীয় সভাপতি শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয়। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন শ্রী বিজয় রানকর, প্রেসিডেন্ট ত্রিপুরা মাথা, এবং শ্রী প্রেম কুমার রিয়াং, প্রেসিডেন্ট IPFG। এবং আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন ত্রিপুরা সরকারের সমস্ত যারা মন্ত্রীগণ আছেন, এবং আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন CEM TTADC শ্রী পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়াজি।